Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Meghmani Organics Limited. Chemistry of success at work. In the world of pigments and agrochemicals, Meghmani Organics has been setting benchmarks for quality and reliability. Over 3 decades of nurturing a planned vision of rapid expansion, backward integration and consolidation has put Meghmani Organics in the coveted list of Fortune 500 companies of India, the 3rd largest manufacturer of phthalocyanine pigments globally, and has emerged among the top 10 manufacturers of agrochemicals in the country. 1986, Ahmedabad. Meghmani forayed into the pigment business with manufacturing of pigment green. 1995, Ahmedabad. Meghmani's first agrochemicals plant kick-started manufacturing pesticides. 1996, Panoli. Diversified our product portfolio by setting up manufacturing facility for pigment blue. 2003, Ankleshwar. Agrochemical facility commences manufacturing of pesticides. 2006, Panoli. New formulation plant of agrochemicals. 2010, Dahej. New manufacturing unit for diversification of agrochemicals. And 2013, Dahej SEZ. New pigment blue facility exclusively for exports. Our plants are located in the chemical hub of Gujarat, close to major ports, international airports and on the DMIC corridor. We are certified for ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 and ISO 45001. Our pigment manufacturing capacities have reached 35,000 tons per annum, and the agrochemicals manufacturing capacities are 50,000 tons per annum. With in-house manufacturing of key intermediates and raw materials, we have ensured sustainable operations, consistent quality and on-time delivery. Complementing each facility is a sophisticated laboratory. Accredited with the prestigious 4-star export house status, Meghmani has a global presence in almost all continents with exports to over 90 countries. We undertake contract manufacturing for several reputed MNCs as well. Research and development has played a vital role in Meghmani's success. Our team of research professionals with a GLP accredited laboratory have strengthened the product portfolio with the addition of new molecules and more than 650 domestic and export product registrations. Meghmani continuously strives to reduce, reuse and recycle chemicals at every stage of operation by making process improvements. We have successfully recovered unreacted bromine and phenol, thereby reducing its consumption as well as reduce the load of the effluent. We have started reusing spent sulfuric acid and HCl to mitigate the challenges of its disposal. The safety and well-being of our people, visitors and the environment has always been the crux of our endeavors. We remain invested in safety systems, conducting safety audits and training manpower in safe manufacturing practices. Emergency response teams at all locations are equipped with the latest firefighting systems. With the robust global and domestic demand of our products keeping an upward curve, Meghmani has invested for the future. To sustain the continual growth,
projects worth 750 crore rupees are initiated at Agrochemicals and Pigment Division, with an active plan to foray into the new and lucrative variants of pigments. By 2023-24, sales for the Agro Division is projected at 2,000 crore rupees and for the Pigment Division at 1,000 crore rupees. While Meghmani keeps charting success stories, we are also sensitive to the needs of the communities around us. Our CSR initiatives in the areas of healthcare, girl education, blood donation and tree plantation drives are bringing a social change in communities. Meghmani's path to progress has been guided by our uncompromising values, our principles and good corporate governance, earning awards, accolades and recognition for it. We provide transparent working culture, creating an environment for the team to pursue collective and individual goals. This chemistry at work is what makes Meghmani a dynamic and enterprising organization. पहले सोचते थे कि भाई आपको कुछ धंधा करना होगा तो फैक्ट्री चाहिए होगी, लैंड लगानी पड़ेगी तो पैसे चाहिए होगा। आज के दिन में फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं, आप कहीं से भी प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, पहले ऐसा था कि प्रोडक्ट बन गया लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती थी। आज के दिन में डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरनेट पे बेच सकते हो। If you are a startup or an investor or you want to be an investor, then you are going to love this conversation with Mr. Mihir Joshi, who is the CEO of GVFL, Gujarat Venture Finance Limited. He has an experience of over 22 years and have invested over 500 crores. હવે અગત્યની વાત આ નથી કે 500 કરોડ ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, પણ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી એક એન્ટરપ્રાઇઝ બનાવી, ઓવરઓલ વેલ્યુ ક્રિએટ કરવી અને પછી સક્સેસફુલ એક્ઝિટ લેવી is far more important than just investing 500 crores. If you are a startup, as I said, or an investor, you're going to love this conversation with Mr. Mihir Shah. હું વિશાલ ગુનાની on behalf of ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાંથી આપનું સ્વાગત કરું છું આ કોન્વર્ઝેશનમાં વિથ મિસ્ટર મિહિર જોશી. સર, ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. સર, હું મારા ફેવરેટ ક્વેશ્ચનથી સ્ટાર્ટ કરીશ. બેંગ્લોર is the Silicon Valley of India, but you have seen some of the finest businesses in the country has come from Gujarat. You know, we being the land of entrepreneurs, right from Dhirubhai Ambani to Gautam Adani, we have given birth to all these great businessmen. Where do we see Gujarat as becoming the next innovators hub in the country? ये आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, वैलिड भी है और ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन मैं आपको है ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ कि 10 साल में बदला क्या है, पहले ये सोचते हैं. राइट. कि पहले 10 साल पहले क्या होता था कि स्पेशली गुजरात में, बिकॉज गुजरात में मैं रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, लोगों को देखता रहता हूँ और बहुत सारे गुजराती बिजनेसमैन ने सक्सेस क्रिएट किए हुए वो भी देखता रहता हूँ. सो ये कहा जाता था बच्चों को, यंगस्टर को कि बाप दादानी जायदाद होए ने तो તમારે ધંધો કરાય. ठीक है, तो एक कल्चर था कि एंटरप्रेन्योरियल यहाँ पर जीन्स में है, लोगों को अपॉर्चुनिटी समझ में आती है. लेकिन 10 साल पहले ऐसा था, जो यहाँ के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए था, कि अगर आपकी पैसा बहुत है तो आप धंधे की सोच सकते हो, नहीं तो अच्छी डिग्री लाओ, कुछ एम्प्लॉयमेंट में जाओ. ठीक है, अभी 10 साल में क्या हो गया कि पहले सोचते थे कि भाई आपको कुछ धंधा करना होगा तो फैक्ट्री चाहिए होगी, लैंड लगानी पड़ेगी तो पैसे चाहिए होगा. आज के दिन में फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं, आप कहीं से भी प्रोडक्ट बना सकते हो. ठीक है, पहले ऐसा था कि प्रोडक्ट बन गया लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती थी. आज के दिन में डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इंटरनेट पे बेच सकते हो. आप कंटेंट क्रिएशन पे, क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सकते हो. इंटरनेट आपको अनेबल करता है. पहले ऐसा था कि अगर आप बड़ी ऑफिस और बड़ी गाड़ी नहीं रखोगे तो आपके एम्प्लॉइज आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपके वेंडर, आपके सप्लायर आपसे बात नहीं करेंगे, आपको भरोसा नहीं करेंगे. आज के दिन में किसी भी एंटरप्रेन्योर को बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है. ठीक है,
उस पर वेंडर भरोसा करते हैं। आज के दिन में स्टार्टअप से भी कोई भी धंधा करता है, चाहे वेंडर हो, सप्लायर हो, एम्प्लॉयज़ भी है, स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर ये बोलते हैं कि भाई मेरा तो ऑफिस ही नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सोच बदली है। लास्ट 10 साल में धीरे धीरे वो सोच बदली है कि स्टार्टअप पर भरोसा किया जा सकता है। एक इकोसिस्टम मैच्योर हुई है जो पहले नहीं थी। अब वो सारी चीज़ें होने लगी तो इन्वेस्टर्स भी आ गए मार्केट में। पहले आप देखो कि एंजल इन्वेस्टर वर्ड ही नहीं सुना था, कि कोई आसपास के जो HNI हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घुमाते हैं, क्या वो भरोसा करेंगे आपके आइडिया पे? आज के दिन में वो पॉसिबल है। एंजल इन्वेस्टर पैसा देते हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन है, एक्सेलरेटर है, सपोर्ट सिस्टम है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं स्टार्टअप हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कहाँ जाके बैठूंगा? कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाओ। पहले ऐसा था कि भाई आपको बहुत सारे सर्वर खुद के लगाने पड़ते थे, अभी सब क्लाउड पे होस्टेड है। तो चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है ना, एंटरप्रेन्योर में हम ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, तो पहले गुजराती इंसान को अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, तो आंसर यस है कि अपॉर्चुनिटी समझ में आती है। पहले क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि अपॉर्चुनिटी समझने के बाद जो आपको पहला स्टेप उठाना है वो बहुत सारी लिमिटेशन थी, कि आपको पहले बोल दिया जाता था कि माँ बाप ज़्यादा नहीं जायदाद हो तो था, वो पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी ये थी लोगों को भरोसा नहीं था। तीसरी चीज़ ये है कि स्टार्ट करने के लिए आपको एक दिखावा करना पड़ेगा। तो आज के दिन में वो सब ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन में अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ समझ में आती है, तो मैं खुल के लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं खुल के लोगों से बात करूँगा, ठीक है फैमिली में नहीं समझेंगे, लेकिन कोई एक्सेलरेटर समझ लेगा, कोई इंक्यूबेटर समझ लेगा, वो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। बहुत सारी ग्रांट्स है, एंजल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में लोग मुझ में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट जर्नी में या कंपनी स्केलअप कैसे करनी, उसके आज के दिन में मेंटरशिप अवेलेबल है। लोग यूट्यूब के वीडियो से भी सीखते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्ट तो कर लिया, लेकिन मैं कैसे उसको स्केल करूँगा। और हर एक प्रोडक्ट के लिए आप ठीक है, नॉट नेसेसरीली वो राइट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि आज के दिन में वो गलती कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप चलना चालू करो, रास्ता बनता जाता है, आप गलतियां करोगे, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी ने आज के दिन में इतनी बड़ी ताकत दी है कि एनीबडी इज कनेक्टेड ग्लोबली टू एनीबडी, ठीक है। अब आपके मेन पॉइंट पे आता हूं कि बेंगलोर में क्यों है, ठीक है। आप देखिए कि बेंगलोर में पहले बड़ी बड़ी IT कंपनीज हुआ करती थी, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन आया, इंटरनेट का एक्सेस आया, तो वहाँ पर जो लोकल टैलेंट अवेलेबल था, उन्होंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने अर्ली कैपिटलाइज किया, क्योंकि इंटरनेट पे मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं मार्केट एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट बिलीव मी, आज के दिन में हो क्या रहा है कि वो इंटरनेट एक्सेस इज अवेलेबल टू एवरी टाउन, एवरी लोकेलिटी। आज के दिन में आप बेंगलोर भूल जाओ, मुझे टायर 2, टायर 3 सिटी से भी एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो वही आइडिया पे काम कर रहे हैं, उससे बेटर आइडिया पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आज कोई भी छोटे टाउन में बैठा हुआ भी एंटरप्रेन्योर है, उसको इंडिया और ग्लोबल एक्सेस है, वो अपनी आइडिया को वहाँ से बैठे स्केल कर सकता है। आज के दिन में हर एक जगह पर इंक्यूबेशन सेंटर खुले हैं, लोकल इकोसिस्टम अवेलेबल है, इन्वेस्टर्स अवेलेबल है। मुझे आज के दिन में ये नहीं लगता, हाँ ठीक है बेंगलोर में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टर्स अवेलेबल है, लेकिन इन्वेस्टर्स क्या होता है कि वो वहाँ पर होता है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स होता है, इकोसिस्टम होता है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर लोकल एंटरप्रेन्योर कुछ कम होते थे, तो उनको कहीं बेंगलोर जाना पड़ता था। हम इन्वेस्टर थे लोकली, यहाँ पर कुछ और इन्वेस्टर्स थे, ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। आज के दिन में लोकल इकोसिस्टम में इन्वेस्टर्स ज़्यादा हो गए, स्पेशली एंजल इन्वेस्टर्स। हम तो VC इन्वेस्टर का काम कर ही रहे। अब एंजल इन्वेस्टर्स बहुत हो गए, स्टार्टअप अर्ली फंडिंग भी मिलना चालू हुआ। हर हफ्ते आपको बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली से कोई ना कोई VC इन्वेस्टर अहमदाबाद में आया हुआ होता है, बोलता है कि मैं कुछ स्टार्टअप से मिल रहा हूँ। लोकल इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें बाहर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं। सो इन्वेस्टर डोंट डिटरमाइन कि आपका यहाँ VC इकोसिस्टम कितना वाइब्रेंट बनेगा।
It is the local ecosystem which determine and compel the investors, not only India, globally, to come and invest. आपको मैं सिंपल फर्दर एक एनालॉजी देता हूँ. बिलीव मी, हम तो एंटरप्रेन्योर से क्लोजली बात करते हैं. बहुत लोकल एंटरप्रेन्योर वो एक्नॉलेज करते हैं कि बिल्डिंग अ टीम, क्योंकि आपको टीम चाहिए, बेंगलोर में डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को रिटेन करना डिफिकल्ट है, वहाँ पर कॉस्ट आपकी हायर है. यहाँ पर आपको अच्छा टैलेंट मिलता है. मुझे आज तक किसी एंटरप्रेन्योर ने ये नहीं बोला कि टैलेंट इज ए प्रॉब्लम इन गुजरात. ठीक है. दूसरी बात ये है कि स्टार्टअप में काम करने में लोगों को भी अभी समझ में आता है कि आप सेट कंपनी में काम करोगे, ठीक है, आपको सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप 10 साल सेट कंपनी में काम करते हो या 5 साल स्टार्टअप में करते हो, थिंग्स आर डिफरेंट. लोगों को भी ये समझ में आता है कि स्टार्टअप में मैं काम करूँगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलेगा, मैं एक स्केलिंग कंपनी का हिस्सा बनूंगा स्टार्टिंग में तो वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा. यंगस्टर होता है बिटवीन 20 एंड 30 जो आज हैं, उन सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आप स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो. इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी. मैं ये नहीं कहता हूँ कि कितने टाइम पे करेगी, कितना टाइम तक करेगी, लेकिन आने वाले 10 साल वो तो जरूर है, क्योंकि वो आपका टाइम है, क्योंकि आप वो प्राइम एज में हो. जो कभी भी शायद आपसे 20 साल बड़े थे, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, राइट, लेकिन उनके लिए वो टाइम है कि नहीं है मैं कमेंट नहीं करूँगा. हो सकता है कुछ लोग कैपिटलाइज कर पाए, लेकिन जो यंगस्टर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है. कैपिटल अवेलेबल है, इकोसिस्टम अवेलेबल है, रेगुलेटरी सपोर्ट अवेलेबल है, और अपॉर्चुनिटी तो बहुत अवेलेबल है. सर, आप जब कह रहे थे तो उसमें मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि अभी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी आ रहे हैं, फंडिंग भी आ रहा है, चाहे वो गुजरात से हो चाहे बाहर से हो. सर, GVFL की बात करें अगर हम, 1990 में फाउंडेड है ये कंपनी, राइट, और वो तब से एज अ VC ही काम कर रही है. सर, तब तो नहीं स्टार्टअप्स थे, नहीं फाउंडर्स थे, नहीं ये कॉन्सेप्ट था. तो सर, हाउ वाज दिस विजन सेट बैक देन इन 1990? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग एट रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम. 1990 में वर्ल्ड बैंक केम अप विद आइडिया एंड मनी. हम उन लोगों ने क्या किया कि भाई हम पैसा हमारे पास है, हम पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ इंस्टीट्यूशन तैयार कीजिए जो वेंचर कैपिटल का काम करें. अब उन्होंने फर्दर समझाया कि वेंचर कैपिटल होता क्या है, कि कोई भी किसी के पास भी इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगी जो पूरा मार्केट को डिसरप्ट कर सकती है. ठीक है, तो वो तो किसी टेक्नोक्रेट के दिमाग में होगी. अब उसको वो सोसाइटी में लाने के लिए पैसे की जरूरत होगी. अगर ऐसा एंटरप्रेन्योर इफ ही इज नॉट पार्टनर्ड विद द राइट कैपिटल, तो टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो नहीं पाएगा. सोसाइटी और इकोनॉमी को वो जो बेनिफिट चाहिए वो नहीं मिलेगा. तो पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, वेदर सोसाइटी चेंज, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड अदर थिंग्स, राइट. तो ऐसे जो टेक्नोक्रेट है जिनके पास कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, अनट्राइड, अनटेस्टेड, बट ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कुछ डिसरप्ट कर सकती है, ठीक है, तो ऐसे टेक्नोक्रेट के साथ पार्टनर किया जाए विथ कैपिटल, कि चलिए आप टेक्नोलॉजी का दिमाग लगाइए, मैं पैसा लगाता हूँ, हम दोनों पार्टनर बनते हैं. मे बी अगर ये सक्सेसफुल हुआ कमर्शियली, ठीक है, तो मे बी यू विल हैव अ लार्जर रिवॉर्ड, आई विल ऑल्सो हैव सम रिवॉर्ड. ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का अप्रोच था, बहुत वंडरफुली डिजाइन था. अब कैपिटल भी वहाँ से आया, और कैपिटल मल्टीपल टाइम्स आया वर्ल्ड बैंक से. इंडिया में ऐसी 3-4 इंस्टीट्यूशन सेटअप हुई, ठीक है, इसमें GVFL वॉज वन ऑफ देम. उसके बाद पैसा आता गया. उनकी जो थीसिस थी कि आपको अनट्राइड, अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी ढूंढनी है जो प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो सके एंड यू कैन रीच टू ए पायलट लेवल. ठीक है, तो ऐसे ऐसे टेक्नोक्रेट भी मिले. और मैं आपको बताऊं, GVFL में
तब से लेके जो पहले 15 साल इन्वेस्टमेंट हुए हैं, ठीक है, एवरी टेक्नोलॉजी वॉज यूनिक एट रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर मिले। हाँ, अगर मैं फ्लैशबैक में देखूं तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, कुछ टेक्नोलॉजी रियल में कमर्शियलाइज भी हुई। हाँ, कुछ और हो सकती थी, कुछ और बड़ी एंटरप्राइज हो सकती थी, लेकिन उस जमाने में आपके पास GVFL के बाद सेकंड राउंड इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं था। तो अब मैंने 2 करोड़ आप में डाल दिया, एक मस्त हमने लोकल लेवल पर अच्छा सा टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कमर्शियल कर दिया। अब उसको पेन इंडिया लेवल पर कैसे ले जाए? उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं कि ठीक है इट कैन बी अ पेन पॉइंट फॉर एवरीबडी बट लेट अस स्केल इट अप। तो वो स्केलिंग अप के लिए अनाबलिंग जो चीज़ें थी वो नहीं थी, और जो दूसरा राइट कैपिटल चाहिए टू ग्रो राइट, वो भी अवेलेबल नहीं था। तो इसी कारण मैं ये कहता हूँ कि हम फॉर्चुनेट थे कि आउट ऑफ दैट लार्ज पोर्टफोलियो जो भी क्रिएट था, ठीक है, 30-40% बाय डिज़ाइन आज के दिन में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टार्टअप सर्वाइव नहीं करते, उस जमाने में भी नहीं की। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी थी दे कुड सर्वाइव, फ्यू कंपनीज बिकम वेरी लार्ज एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो इक्विटी रिटर्न डिसप्रोपोर्शनेटली उसमें हायर आ गया, तो रिटर्न अच्छे जनरेट हो गए, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल इकोसिस्टम ग्रो हो गया, ठीक है। तो आज के दिन में 10 साल में हम भी जहाँ पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं, तो अच्छी बात यह है कि जो एंड वेंचर कैपिटल पूरा इकोसिस्टम है ना, कनेक्टेड है। जैसे हर एक VC अगर 5 साल से बिजनेस में है तो सब लोगों को जानता है, एवरीबडी नोस ईच अदर, राइट। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर काम कर रहे हैं उन सब में क्या क्या एक्टिविटी लेवल हो रहे हैं वो हम सब ध्यान रखते रहते हैं कि कहाँ पर अच्छे एंटरप्रेन्योर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, अर्ली ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। हम जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर दूसरे VC वाले ध्यान रखते हैं, ठीक है, गौर है तुमने ये किया, मुझे भी कुछ करना है इसमें। तो होता क्या है कि एक स्पायरलिंग इम्पैक्ट आती है। तो मेरे इन्वेस्टमेंट में सेकंड राउंड भी होता है, थर्ड राउंड भी, मीन्स मेरे यानी किसी भी VC के साथ होता है कि अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और अगर वो फाउंडर अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरे सारे इन्वेस्टर से वो सब ध्यान रख के बैठे हैं कि लास्ट ईयर कितनी कंपनी फंड हुई। तो लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड उठाया ऐसी कंपनी 1000 थी, तो हजार कंपनियां सबके रडार में, उसमें से अगर 300 अच्छा कर रही है तो वो सबको सेकंड राउंड भी मिलेगा, वो अच्छा करेंगे थर्ड राउंड भी मिलेगा, फोर्थ राउंड में जैसे जैसे आपकी राउंड साइज बड़ी होती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ अवेलेबल कंपनीज फॉर अ लार्जर इन्वेस्टर जो 200-500 करोड़ लेके बैठे उनके लिए कम होती जाती है। इसीलिए आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन में देखोगे ना कि ये कंपनी ने 500 करोड़ उठाया। क्यों 500 करोड़ उठाया? क्योंकि वो इन्वेस्टर 500 करोड़ से नीचे का चेक नहीं लिखता है, बट उसको लिखना है तो उसके लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटी जितनी है उसमें से किसी को देगा, ठीक है। तो वैसे है, बट इसमें मैं GVFL की हिस्ट्री भी बताई, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी बताया, और जो लास्ट 5 से 7 साल में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। સર, જેમ તમે કીધું કે જ્યારે GVFL નું બર્થ થયું હતું ત્યારે ઇટ વોઝ પ્રીડોમિનન્ટલી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ઇનોવેશન એન્ડ ટેકનોલોજી, રાઈટ? ટુડે ઇફ યુ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ wherein there is a company which is solving a great problem but the market size is say 1000 crores against a company which is like a me too product, જેમ કે Amazon છે તો બી Flipkart બન્યું, right? But the market size is beyond 10,000 crores, right? Where would you put your money? जहाँ पर भी प्रोडक्ट में आपने कुछ किया है कि ये मैंने बहुत ग्रेट ये टेक्नोलॉजी बनाई, ये प्रोडक्ट है और काम करेगा, तो वहाँ पर पैसा जाता था, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया, जो हमको भी समझ में आया, जो आपके लिए मीटू मॉडल हो सकता है कि सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन ही नहीं होता है। हाँ, वो एक पार्ट है कि प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कंपनी है, प्रोडक्ट इनोवेशन, उसके लिए अगर मार्केट एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए तो वेंचर कैपिटल है ही, लेकिन कुछ बिजनेस मॉडल इनोवेशन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस इनोवेशन हो सकते हैं। तो ये जो फ्लिपकार्ट है तो दूसरी ई कॉमर्स कंपनी को पैसा क्यों मिला?
और एक पॉइंट ऑफ टाइम में देर वेर अराउंड 350 से 400 ई कॉमर्स स्टार्टअप थी कि जिनको पैसा उन्होंने मल्टीपल राउंड उठाया। तो पॉइंट ये है कि इन लोगों ने बिजनेस मॉडल इनोवेशन किया। अगर इंडिया में रिटेल बात करो तो रिटेल में कैसा था कि मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता था, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर, फिर मल्टीपल चैनल रहती थी, जितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो 3 लेयर के बाद रिटेलर के बाद पहुंचता था, ठीक है। रिटेलर कंज्यूमर को देता था। अब आप पूरी सप्लाई चेन देखो तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी के सारे लोग वो उसका कोई वैल्यू एड नहीं है, वो प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से निकला, उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन वो 10 रुपये का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर 15 में दे रहा है और कंज्यूमर के हाथ में आ रहा है 100 रुपये में। अब पॉइंट ये है कि उसमें इन सब लोगों ने पैसा बनाया। तो टेक्नोलॉजी आ गई। तो पॉइंट ये है कि जो नया एंटरप्रेन्योर बोलता है कि भाई मैं डायरेक्टली बेचता हूँ, तो जो ई कॉमर्स कंपनियों में जो प्लेटफॉर्म थे, राइट, उसमें इसलिए इन्वेस्ट हुआ कि वो एक मैन्युफैक्चरर को या एक सेलर को अनाबल करता है कि डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचो। तो ये एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल इनोवेशन था, राइट। हाँ, मी टू मॉडल कह सकते हो, क्योंकि किसी ने अमेजोन यूएसए को कॉपी मारा, ठीक है, किसी ने उसको कॉपी मारा, ठीक है। सो द पॉइंट इज के अब ऐसे 5-6 बन गए, बाद में उसे दूसरे 25 बने, ठीक है। तो सबने एक दूसरे को कॉपी मारा। अब पॉइंट ये है कि अगर आप मुझे पूछो कि अब इनोवेशन कहाँ रहा, आंसर इज यस, बट द पॉइंट इज कि वो एक बिजनेस मॉडल इनोवेशन तो है, इसमें सक्सेसफुल कौन होगा? जो एग्जीक्यूट जोरदार करेगा। एग्जीक्यूट कौन करेगा? जो टेक्नोलॉजी लेवल पर हमेशा डिसरप्टिव रहेगा। तो इसमें बहुत कम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप ई कॉमर्स बना लो, आप सेलर और बायर को कनेक्ट करते हो, लेकिन बाद में एक एल्गोरिथमेटिक इंटेलिजेंस, बाकी सब चीज़ें, फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली आप करते रहते हो, ठीक है। और फर्दर फंडिंग राउंड भी अगर आपको मिलते रहते हैं तो यू आर डिफरेंट देन अदर्स। तो हर एक चीज़ में मार्केट साइज, जैसे आपने बताया कि बड़ी मार्केट साइज है लेकिन मी टू मॉडल है, क्यों इन्वेस्ट हुआ? तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो मी टू मॉडल नहीं है। हाँ, लार्ज मार्केट है, वहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट है, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा होती है। सर, आपने बताया कि काफ़ी कंपनीज को मल्टीपल फंडिंग राउंड्स मिलते हैं। क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए, इफ़ यू कैन ब्रेक इट डाउन, इट स्टार्ट्स वेयर एंड गोज अप टू व्हाट सीरीज? देखिए, ऐसा है कि एंटरप्रेन्योर जब चालू करता है ना, तब वो रियली ब्लेस्ड फील करता है कि उसको पहले 25-50 लाख का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। वो 50 लाख का सपोर्ट मिल गया, चाहे इंक्यूबेटर में हो, एक्सेलरेटर में हो, और हर एक इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर के पास वो कहीं ना कहीं कुछ एंजल इन्वेस्टर के साथ या उनका खुद का भी प्रोग्राम रन होता है कि जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया जहाँ पर बैठ के काम करते हो, आपने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली कि भाई अब मैं स्टार्टअप हूँ, आपको 50 लाख का सपोर्ट मिल गया, तो आपको अर्ली कुछ टीम मेंबर्स मिल गए, ठीक है। अब वो सपोर्ट के साथ आपने कुछ फर्स्ट प्रोडक्ट बना लिया, फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या टेक्नोलॉजी जो भी बोलो, तो उसको देख के कुछ एंजल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब एंजल इन्वेस्टर आ जाते हैं, वो 2, 4, 5 करोड़ का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। उसको एक अनाबल करता है कि अगर 10 स्टार्टअप ऐसे सपोर्ट पा लेंगे तो करीब करीब 5 स्टार्टअप एक लेवल तक स्केल कर लेंगे कि उनको प्री सीरीज ए फंडिंग, प्री सीरीज ए हम बोलते हैं, जो 10 से 15 करोड़ के बीच में होता है। अगर वो मिल गया, आपने एक लेवल पर मैट्रिक्स ग्रो कर लिया, ठीक है। तो बाद में, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या है कि हर एक की फंड साइज अलग अलग होती है, तो जो 1000 करोड़ का फंड है वो 50 करोड़ से नीचे इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो 2 या 3 हज़ार करोड़ का फंड है उनकी टिकट साइज और बड़ी हो जाएगी। सो द पॉइंट इज कि हर एक जो फंड होता है, इन्वेस्टर होता है, वो अपना काम करता है। आप एज ए एंटरप्रेन्योर अपना काम कर रहे हो कि भाई ठीक है, मैंने लास्ट राउंड 10 करोड़ का उठाया था, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने अच्छे से मैट्रिक्स ग्रो किए हैं, तो अभी मुझे 50 करोड़ मिलेगा कि नहीं,
अगर आपने किया है, अगर मार्केट साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, वैल्यू क्रिएशन की पॉसिबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होता है जी, जैसे जैसे बढ़ते जाते हो ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाती है, क्योंकि उसको संभालना भारी काम होता जाता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप पहले बहुत मेहनत लगती है, फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये सिस्टम प्रोसेसेस को टेक्निकली प्लग इन करते जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी अपना काम करती है, ठीक है। फिर और बड़े होते जाते हो तो आपको और एजुकेशन होता है कि कस्टमर भी आप टेक्निकली एक्वायर कर सकते हो, एग्जीक्यूशन भी टेक्निकली हो रहा है, फुलफिलमेंट भी टेक्निकली हो रहा है। तो द पॉइंट इज द टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग इट्स रोल। तो कुछ बिजनेसेस एक लेवल के बाद बाय डिजाइन इन्वेस्टर को स्केलेबल लगने लगते हैं। तो अगर बहुत बड़ा मार्केट एग्जिस्ट करता है, आपने मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ ग्रो कर लिए, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते जाते हैं। तो अब जैसे आपको 1000 करोड़ मिल गए, ठीक है, 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन से, क्योंकि वैल्यूएशन क्या होता है, 1000 करोड़ वाला 10% स्टेक लेगा, ठीक है, तो 10,000 करोड़ की वैल्यू हो गई। अब स्टार्टअप अपने आप में सोचेगा, उसके आसपास के लोग सोचेंगे, अरे भाई ये तो अभी यहाँ था, अभी इतना बड़ा कैसे हो गया, न्यूज़पेपर में फोटो आ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जर्नी इतनी रिवॉर्डिंग है कि 5-6 साल में आप कुछ नहीं थे और कुछ हो गए, बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है, और वो पॉसिबल है कोई भी स्टार्टअप के लिए, कोई भी फाउंडर के लिए। Megmoney Organics Limited. Chemistry of success at work. In the world of pigments and agrochemicals, Megmoney Organics has been setting benchmarks for quality and reliability. Over 3 decades of nurturing a planned vision of rapid expansion, backward integration and consolidation has put Megmoney Organics in the coveted list of Fortune 500 companies of India, the third largest manufacturer of phthalocyanine pigments globally, and has emerged among the top 10 manufacturers of agrochemicals in the country. 1986, Ahmedabad. Megmoney forayed into the pigment business with manufacturing of pigment green. 1995, Ahmedabad. Megmoney's first agrochemicals plant kick-started manufacturing pesticides. 1996, Panoli. Diversified our product portfolio by setting up manufacturing facility for pigment blue. 2003, Ankleshwar. Agrochemical facility commences manufacturing of pesticides. 2006, Panoli. New formulation plant of agrochemicals. 2010, Dahej. New manufacturing unit for diversification of agrochemicals. And 2013, Dahej SEZ. New pigment blue facility exclusively for exports. Our plants are located in the chemical hub of Gujarat, close to major ports, international airports and on the DMIC corridor. We are certified for ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 and ISO 45001. Our pigment manufacturing capacities have reached 35,000 tons per annum, and the agrochemicals manufacturing capacities are 50,000 tons per annum. With in-house manufacturing of key intermediates and raw materials, we have ensured sustainable operations, consistent quality and on-time delivery. Complementing each facility is a sophisticated laboratory. Accredited with the prestigious 4-star export house status, Megmoney has a global presence in almost all continents with exports to over 90 countries. We undertake contract manufacturing for several reputed MNCs as well.
Research and development has played a vital role in MakeMoney's success. Our team of research professionals with a GLP accredited laboratory have strengthened the product portfolio with the addition of new molecules and more than 650 domestic and export product registrations. MakeMoney continuously strives to reduce, reuse and recycle chemicals at every stage of operation by making process improvements. We have successfully recovered unreacted bromine and phenol, thereby reducing its consumption as well as reduce the load of the effluent. We have started reusing spent sulfuric acid and HCl to mitigate the challenges of its disposal. The safety and well-being of our people, visitors, and the environment has always been the crux of our endeavors. We remain invested in safety systems, conducting safety audits, and training manpower in safe manufacturing practices. Emergency response teams at all locations are equipped with the latest firefighting systems. With the robust global and domestic demand of our products keeping an upward curve, MakeMoney has invested for the future. To sustain the continual growth, projects worth 750 crore rupees are initiated at Agrochemicals and Pigment Division, with an active plan to foray into the new and lucrative variants of pigments. By 2023-24, sales for the Agro Division is projected at 2,000 crore rupees and for the Pigment Division at 1,000 crore rupees. While MakeMoney keeps charting success stories, we are also sensitive to the needs of the communities around us. Our CSR initiatives in the areas of healthcare, girl education, blood donation, and tree plantation drives are bringing a social change in communities. MakeMoney's path to progress has been guided by our uncompromising values, our principles, and good corporate governance, earning awards, accolades, and recognition for it. We provide transparent working culture, creating an environment for the team to pursue collective and individual goals. This chemistry at work is what makes MakeMoney a dynamic and enterprising organization. નમસ્કાર ભાઈઓ અને બહેનો, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચાનો આ એપિસોડ આપ સૌના માટે ખૂબ જ જ્ઞાનવર્ધક રહ્યો હશે. મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. વિકાસની આ હરણફાળમાં, વિકાસની આ યાત્રામાં ઘણા નાના મોટા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી નાના મોટા વેપારીઓ તેમજ સરકાર વચ્ચેનો એક સેતુ છે, બ્રિજ છે. તે જવાબદારીના ભાગરૂપે ચેમ્બર દ્વારા વારંવાર સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ કાયદાકીય નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે અને યોગ્ય રજૂઆતો સરકારમાં કરવામાં આવતી હોય છે. અમને ચોક્કસ ખાતરી છે આ શ્રેણી દ્વારા આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું હશે, જે તમને તમારા વેપાર ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. મિત્રો, જીસીસીઆઈ દ્વારા એક નોમિનલ મેમ્બરશિપ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. તે દ્વારા નાનામાં નાના વેપારીઓના સશક્તિકરણ માટે ચેમ્બર દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે. આપ સૌને નમ્ર અપીલ છે કે આપ પણ સૌ નોમિનલ મેમ્બરશિપ દ્વારા ચેમ્બર સાથે જોડાઓ. સાથે સાથે જીસીસીઆઈ દ્વારા એક હેલ્પ ડેસ્ક પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનો ઈમેલ એડ્રેસ સ્ક્રીન પર અવેલેબલ છે. તેના દ્વારા આપ સૌ આપના પ્રશ્નો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને મોકલી શકો છો. તેના યોગ્ય સમયસર ઉકેલ માટે અમે તત્પર છીએ. ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.